Learners, in this video we are to take the information about interrogative sentence construction of dare to. Which modal auxiliary are we learning? We are learning here dare to. Already we finished affirmative and negative. So third sentence construction is interrogative. How should we construct a verbal question or yes no question with the help of dare to? Okay, so if it is a question, verbal question particularly, so you are to take this modal auxiliary at the beginning. So rule is rule dare, then subject, after that to, and which form of verb? First form of verb, then object, after that remaining part of sentence, and please don't forget to give question mark because it is a question, verbal question or yes or no question, but it is a question. Okay, so please pay your attention. Dare and subject, after that to, dare to and subject, that is incorrect. Okay, I will take 4 examples. You have to translate my sentence. Lastly, I will give you a sentence in Marathi and in Hindi. You are to translate that sentence. Okay, what are the uses of dare to? You must know it, because if you prepare any competitive examinations, so that time they give a sentence, modal auxiliary sentence, and they ask choose appropriate modal auxiliary which indicates suppose capacity, possibility, nature, ability, daring, like this. So that time you must know the use. So what are the uses of dare to? Dare to indicates courage, adventure and daring. Okay, हिम्मत, साहस, धैर्य दर्शविते हे डेअर टू. तर मी 4 वाक्य घेतो, एक तुम्ही करा. मला असं म्हणायचं इंट्रोगेटिव्ह. आता इफ इट इज अ क्वेश्चन, वर्बल क्वेश्चन, नो डाऊट, सो युअर मराठी सेंटेन्स अँड हिंदी सेंटेन्स मस्ट बी ऑल्सो अ क्वेश्चन. मराठीमध्ये असू द्या किंवा हिंदीमध्ये असू द्या, वो प्रश्न ही होना चाहिए. तो मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, अब आप बनाएंगे. गौतम मध्ये वाघाशी लढाई करण्याची हिम्मत आहे का? किंवा गौतम वाघासोबत लढाई करण्याची हिम्मत करतो का? इन हिंदी क्या, इन हिंदी शुरू में क्या आता है? क्या गौतम बाघ के साथ लड़ाई करने की हिम्मत करता है या उसमें वो हिम्मत है? देखिए सेंटेंस मैंने आपके सामने रख दिया. अब रूल, रूल पे नजर. शुरू में डेयर, एक बच्चे का नाम लिया, आप कुछ भी ले सकते हो, मैंने गौतम लिया, आप राहुल, राजू ले लो. डेयर गौतम एंड देन टू. प्लीज यहां पे आपको ध्यान देना है, डेयर टू गौतम ऐसा नहीं है. डेयर गौतम टू, हाँ, फाइट, फाइट लड़ाई करने वगैरह है ना, फाइट, हाँ, वाघासोबत, बाघ के साथ, विथ अ टाइगर. ओके, देखिए dare Gautam to fight with a tiger means here dare to indicates daring, courage and adventure. Okay, the sentence, please follow the rule when you try to translate any sentence. बर, सेकंड सेंटेन्स, तो व्यक्ती तेथे एकटे जाण्याचे साहस करतो का? किंवा त्या व्यक्तीमध्ये तेथे एखादं ठिकाण आहे, एकटे जाण्याचे साहस आहे का, धैर्य आहे का, हिम्मत आहे का? इन हिंदी, क्या वो व्यक्ति वहां अकेले जाने की हिम्मत करता है, साहस करता है या धैर्य है उसमें, असंही तुम्ही विचारू शकता. अब कैसा करेंगे, देखिए रूल. यस, डेयर subject, who, that person, that person. You can use fellow, dare that fellow, after that to, हाँ, जाने, जाना, go,
there, alone, lonely, you can use, no doubt. Yes, dare that person to go there alone or lonely, no doubt. But what is my motto here? To introduce you modal auxiliary which indicates adventure, courage and daring. तो सेंटेंस ऐसा बनता है, dare that person to go there alone or lonely. सेंटेंसेस थोड़े सिंपल ले रहा हूं, रचना पे ध्यान दीजिए, इंटरोगेटिव है, सो प्लीज फॉलो दिस रूल हियर. ओके, थर्ड सेंटेंस आय वुड लाईक टू से, कोणत्याही राष्ट्रामध्ये दुष्काळाचा सामना करण्याची हिंमत आहे का किंवा धैर्य आहे का? आजकाल कोणतंही राष्ट्र दुष्काळाशी दोन हात करण्याची हिम्मत करते का, साहस करते का? इन हिंदी, क्या कोई भी राष्ट्र आजकल अकाल के साथ दो हाथ करने की हिम्मत करता है या सामना करने की हिम्मत करता है? ओके, यस. कैसे करेंगे? रूल आपको छोड़ना ही नहीं मेरे मित्रों. डेयर एनी नेशन और कंट्री, नो डाउट, डेयर एनी नेशन टू फाइट नहीं लेना, ऐसे समय फेस ऐसा लेना, सामना करने, मुकाबला करने, सामना करना. इन हिंदी मुकाबला, फेस. कुछ बच्चे फाइट ले सकते हैं, एक्सेप्ट इट, लेकिन फेस इज द बेस्ट. ओके, हाँ, फेस. हाँ, दुष्काल, अकाल ऐसा शब्द लिया था मैंने. ड्रॉट, लैक ऑफ वाटर, ड्रॉट. Nowadays, and please don't forget to give question mark. देखिए सेंटेंस, dare any nation to face drought nowadays. ओके, थोड़ा नया शब्द है, आप लीजिए. कुछ बच्चे फेमिन भी ले सकते हैं, फेमिन. नेक्स्ट सेंटेंस आई विल यूज फेमिन दैट वर्ड. ओके, इट वॉज माई थर्ड एग्जाम्पल. रूल पे नजर आ, एंड व्हेन आई गिव यू मराठी और हिंदी सेंटेंस, दैट टाइम यू शुड ट्राई टू ट्रांसलेट इन योर माइंड कि ऐसा सेंटेंस होना चाहिए. देखते हैं सर कैसा करते, यू मे गेट कॉन्फिडन्स माय फ्रेंड. लास्ट सेंटेंस, मला असं म्हणायचं आहे, तो गरीब शेतकरी इतके पैसे ऑपरेशनसाठी, शस्त्रक्रियेसाठी देण्याची हिम्मत करतो का, किंवा त्याच्यात हिम्मत आहे का, साहस आहे का? इन हिंदी, क्या वो गरीब किसान शल्य चिकित्सा के लिए इतने पैसे भरने की हिम्मत करता है, या उसमें हिम्मत है, ऐसा वाक्य. चलो कैसे करेंगे? गड़बड़ नहीं करना, रूल पे नजर. यस, फर्स्ट ऑफ ऑल डेयर, आफ्टर दैट सब्जेक्ट हु, दैट, पुअर, फार्मर. डेयर दैट पुअर फार्मर. हाँ, ओके, रूल पे नजर. आफ्टर सब्जेक्ट टू, पे, गिव, डिपॉजिट. ओके, नो डाउट, यू कैन यूज. डेयर दैट पुअर फार्मर टू पे, टू गिव और डिपॉजिट सच मनी और अमाउंट, और बहुत ही ज्यादा है तो आप स्ट्रेस भी दे सकते हो, सच ह्यूज मनी डाल सकते हो, कोई टेंशन नहीं. हाँ, आरपीएस, फॉर ऑपरेशन. सम स्टूडेंट्स में यूज सर्जरी, रहने दो. यस, एंड डोंट फॉरगेट टू गिव क्वेश्चन मार्क. देखिए सेंटेंस, डेयर दैट पुअर फार्मर टू पे सच मनी फॉर ऑपरेशन और सर्जरी. ओके, एक सेंटेंस ध्यान से सुनिए, आपको बनाना है. आई वुड लाईक टू से, तुम्ही इंग्रजीमध्ये स्वतःचे वाक्य बनविण्याची हिम्मत करता का, किंवा साहस करता का? इन हिंदी, क्या आप अंग्रेजी में खुद के वाक्य बनाने की हिम्मत करते हो या साहस करते हो? ये सेंटेंस आपको अंग्रेजी में करके मुझे कमेंट बॉक्स में डालना है. इफ यू गेट एनी डिफिकल्टी एंड इफ यू थिंक यस सर योर सेंटेंस
which I have given Marathi or in Hindi. So if you think that is right, so no doubt. But if you have any doubt, any query, please comment me. Okay, friends. Here I finished third sentence construction of dare to, and that was interrogative. How should we construct a verbal question or yes or no question with the help of dare to? Okay, my friends, please प्रैक्टिस इट. ओके, नया टॉपिक रहता है, हमने बार बार नहीं पढ़े वाला रहता है, सो इट इज माई हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज प्रैक्टिस इट. ओके, आई विल स्टॉप हियर. थैंक यू.